ناظرین، ٹوڈے پاکستان کے ساتھ میں ہوں ماری اکبر۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایسی شخصیت سے کرانے لائے ہیں جو کہ آسٹریلین نژاد پاکستانی ہیں، جنہوں نے 2013 میں آسٹریلیا میں اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے پاکستان آئے اور ایک مشن کے ساتھ آئے کہ پاکستان کو کلین اینڈ گرین کریں گے، یعنی سرسبز و شاداب اور صاف ستھرا بنائیں گے۔ انہوں نے اپنے اس مشن پر 10 کروڑ سے زائد روپیہ خرچ کیا، اور اس کے علاوہ اسلام آباد میں اپنے پلاٹس انہوں نے سیل کر دیے۔ کرنٹلی ان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں والنٹیئرز کام کر رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے ایکٹیویٹیز کرائی ہیں پورے پاکستان میں صفائی کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ کرنٹلی لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے درخت بھی لگائے ہیں اسلام آباد، راولپنڈی اور پاکستان کے باقی شہروں میں، اور ان کا مشن ہے کہ پاکستان کو کلین اینڈ گرین کریں، اور اس کے لیے وہ سرگرم ہیں اور لگے ہوئے ہیں۔ اپنی نوکری سب کچھ چھوڑ کے صرف پاکستان میں آئے ہوئے ہیں کہ پاکستان کو سرسبز شاداب اور صاف ستھرا بنائیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے طارق خان صاحب، اور جیسا کہ میں نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ یہ اب آسٹریلیا چھوڑ کے پاکستان آئے پاکستان کو صاف ستھرا اور سرسبز بنانے کے لیے۔ سب سے پہلے سر بہت شکریہ، آپ نے ٹوڈے پاکستان کو ٹائم دیا، اور ویلکم کرتے ہیں ہمارے شو میں۔ تھینک یو ماریا، تھینک یو ٹوڈے پاکستان کہ مجھے اس پروگرام میں موقع دیا۔ سر مجھے بتائیے گا، 2013 میں آپ آسٹریلیا میں اپنا کاروبار، اپنا جاب اور اپنی پوری فیملی کو یہاں لے کے پاکستان شفٹ ہوئے، یا ظاہر ایک ٹف ڈیسیجن تھا آپ نے، کیوں آپ نے یہ سوچا کہ بھئی آسٹریلیا چھوڑ کے پاکستان واپس جانا چاہیے، اور پاکستان میں آ کے کس طرح سے آپ نے ایک پاکستان کو صاف ستھرا بنانے اور کلین اینڈ گرین بنانے کے لیے آپ نے اپنا مشن سٹارٹ؟ ماریا، یہ واقعی بہت مشکل فیصلہ تھا، کیونکہ وہاں پہ میری بہت اچھی جاب تھی، بہت اچھی لائف بھی بہت اچھی تھی، لگژری لائف اگر میں کہوں، کیونکہ وہاں پہ جو آپ کو سہولتیں ملتی ہیں وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن ایک مقصد تھا اور ایک ادار تھا اس ملک کا۔ میں ہمیشہ اپنے آپ پہ ایک ادار سمجھتا تھا اس ملک کا، کیونکہ میں نے یہاں پاکستان میں یہاں کے اداروں میں 16 سال اس کی یہاں پہ تعلیم حاصل کر دی مفت میں۔ میں آپ کہوں گا اس وقت مفت تھا، جس وقت میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ 30 سال تک میں یہاں کی جو صحت کی سہولتیں یا دوسرے جو سرکاری جو گورنمنٹ کی طرف سے جو سہولتیں ملتی تھی اس ملک کی، وہ سہولتیں میں نے استعمال کی تھی۔ تو پھر میں ہمیشہ یہ سوچا کہ دیکھیں میں نے ملک کے لیے کیا کیا۔ میں 30 سال وہاں پہ رہ کے پھر یہاں پہ آسٹریلیا شفٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں اچھی جاب ہے، اپنے فیملی کے لیے میں پیسے کما رہا ہوں، بنا رہا ہوں، لیکن ملک کے لیے جو ملک نے مجھ پہ 30 سال میں مجھ پہ جو ٹیکس پیئر کا پیسہ خرچ کیا، تو میں اس کو اپنے اوپر ایک ادار سمجھ رہا تھا۔ اس ادار کو پے بیک کرنے کے لیے میں ہمیشہ سوچ رہا تھا کہ میں کیا کر دوں۔ ہم جب بھی آتے تھے پاکستان میں تو بچے، جب ہم ایئرپورٹ پہ ہوتے تھے باہر نکلتے تھے تو بچے ہمیشہ یہی سوال کرتے تھے، بابا یہ ہر جگہ کچرا کیوں پڑا ہوا ہے؟ پھر یہی تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں، پھر ذہن میں آیا کہ نہیں چلو دیکھیں میں مزید تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم پاکستان کو تو ایک صاف ستھرا ماحول تو دے سکتا ہوں، جس کے لیے مجھے نہ کسی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کوئی گورنمنٹ پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کوئی لائسنس، نہ کوئی اسپیشل ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ بس لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، لوگوں کو آگاہی دینی ہے۔ پھر یہی جب نیکسٹ ٹائم ہم جب آئے 2013 میں، تو ہم چھٹیوں پہ آنے کے بجائے ہم یہاں پہ 2013 میں شفٹ ہو گئے فیملی کے ساتھ۔ پھر تھوڑا سا ٹائم لگا اس میں، کیونکہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ یہ جو کچرا ہے پاکستان میں، اس کو لوگ ہم بہت کچرے کو تو غلیظ سمجھتے ہیں، لیکن کچرے جو اٹھاتا ہے، جو صفائی کرتا ہے، اس کو بہت بری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو میں ہمیشہ تھوڑی سی وہ تھی، ہیزیٹیشن تھی۔ پھر ایک دن آیا، یہ جنوری، میرے خیال میں جنوری فروری 2014 کی بات ہے، میں ایک پارک میں بیٹھا تھا دھوپ میں، اور وہاں پہ ایک جوان لڑکا آیا اور اس کے ہاتھ میں ریپرز تھے اور کچھ کھانے پینے کی چیز، اس نے وہ ڈسٹ بن وہاں پڑا تھا، لیکن اس کے نیچے اس نے پھینک دیا۔ اور یہی ہوتا کہ دیکھیں میں بس مزید انتظار نہیں کر سکتا، اور وہ میں خود جا کے وہ چیزیں میں اپنے ہاتھوں سے اٹھا لی اور بن میں ڈال لی۔
उसी से मतलब वो जो मामूली सी वो थी जो एक्शन था या उसने मुझे थोड़ा-सा मैं तो उसको मतलब क्या कहूँगा कि उसने मुझे मज़ीद ज़रा वो ट्रिगर किया कि मैं स्टार्ट कर दूँ। यही मेरे लिए स्टार्टिंग पॉइंट था। और उसके बाद कोई 5-6 महीने में सिर्फ़ पार्कों में और जो मुख्तलिफ़ जगह थी, वहाँ मैं खुद अकेले जाता था और ये कचरा चुन के और डस्टबिन में डालता था। फिर 2014 अगस्त में एक 2 सियासी पार्टियाँ थी, उनका बहुत बड़ा यहाँ पे इज्तिमा हुआ इस्लामाबाद में, बहुत बड़ा था और वो लोग भी ज़्यादा थे और काफ़ी दिनों के मतलब 126 दिन था और वो मेरे लिए एक मौका था। तो जब धरना शुरू हुआ तो मैं कहा यार देखें अभी तो मेरे लिए और भी काम आसान हो गया, लोग आएँगे और लोग गन करेंगे और गन को साफ करने के लिए यही मैं अपॉर्चुनिटी है। तो मैं खुद मतलब वहाँ पे 98 डेज़ गया, कचरा उठाता रहा, फ़ोकस यही था कि मैं वहाँ के जो एजुकेटेड लोग थे, जो लीडरशिप थी, उसको मैं साफ़-सुथरे माहौल के बारे में ज़रा एजुकेट कर दूँ, उनको आगाही दे दूँ कि साफ़-सुथरा माहौल मतलब हमारी ज़रूरत है। लेकिन इसका उसी वक़्त तो इतना असर नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद लोग मेरे साथ मिलते रहे और हमने इसको मतलब मज़ीद फैलाया। उसके बाद फिर मैंने इसको रजिस्टर भी किया 2015 में एक क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के नाम से। एस्टेब्लिश तो 2014 में हुआ था, लेकिन 2015 में मैंने इसको रजिस्टर किया। ऑफ़िस लिया वहाँ पे एफ़ 3 में और 2-4 बंदे रखे। इस तरह हम मतलब मुख्तलिफ़ जगह पे मतलब जाते थे, एक्टिविटी करते थे और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के, स्कूल के बच्चों के साथ मिला के मुख्तलिफ़ जगह पे हम एक्टिविटी करते थे। सर, आपको आपने काफ़ी अपने पुरानी इंटरव्यूज़ में बताया कि लोग तब आपको जब आप सफाई करते थे तब आपको जो है मना भी करते थे, आपको कहते थे यार आप सीडीए या म्यूनिसिपल कमेटी से तो नहीं हो। इवन आपने ये भी बताया कि लोग आपको पागल कहते थे। ये मुझे इसके हवाले से बताइए। ये धरने के दौरान तो ज़ाहिर है मीडिया भी बहुत था और लोग भी वो थे, तो लोग मज़ाक उड़ाया करते थे, वो नहीं समझते थे कि मैं सीरियस हूँ। लेकिन जब मेरे शर्ट को देख के वो कहते 2020 यार आप क्या मज़ाक कर रहे हैं? ये तो 2014 है और आप 2020 में मुल्क को किसके साथ करेंगे अकेले? लेकिन मैं वो सुनता रहा और एन्जॉय करता रहा क्योंकि उनकी अपनी सोच थी, अपनी राय थी और मेरे लिए जो एक मकसद था, मुझे तो पता था कि मैंने क्या करना है। एक टारगेट मैंने बहुत पहले से मतलब मैं क्लियर था कि यही चीज़ मैंने करनी है बाय 2020 इंशाल्लाह हम उसको साफ-सुथरा बनाएँगे। जो काम मैं अकेले शुरू किया था और मैं उसी को मतलब ज़ाहिर है एक बंदा कितना कर सकता है, 7 साल मुझे लगे और उसपे मेरे मतलब बहुत से पैसा खर्च हुआ। इन्होंने इस्लामाबाद में अपना प्लॉट तक अपने मिशन के लिए जो है बेच दिया, प्लस 10 करोड़ से ज़ायद जो है इन्होंने अपने इस मिशन पे लगा दिया, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान पे। सर, यहाँ पे मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि ज़ाहिर है आप ऑस्ट्रेलिया से अपनी जो है हाई लग्ज़रियस जॉब और लाइफ छोड़ के आए, तो यहाँ पे आपको रिश्तेदारों ने, घर वालों ने आपको जो है सपोर्ट किया और कितना मुश्किल था, क्या मुश्किलात आई, ये इसके हवाले से भी बताइएगा? जी मारिया असल में जो मैं डायरेक्ट जो कास्ट पे है तकरीबन 100 करोड़ से ज़्यादा लगा हुआ है। बाकी जो है क्योंकि मेरे वहाँ पे इनकम लॉस मैं कहूँगा कि क्योंकि मैं यहाँ पे 7-8 साल हो गए। मेरे यहाँ पे कोई जॉब नहीं है, कोई इनकम नहीं है। वहाँ पे मेरे मतलब करोड़ों की सालाना वो इनकम थी, तो वो मुझे अभी नहीं मिली। वो मेरा नुकसान है। तो डायरेक्टली तो ख़ैर मतलब मैं करोड़ से ज़्यादा कहूँगा, लेकिन इनडायरेक्टली अगर कहें तो इनकम लॉस इंक्लूड कर दे तो कोई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई 10 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुआ है। मेरे पास यहाँ पे प्लॉट्स थे, वो मैंने सारे बेच दिए। रिश्तेदार भी थोड़ा-सा खुश नहीं है, मतलब इवन फैमिली भी कि कोई क्या पागलपन है, आप मुल्क के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक मकसद था, मैं चाहता हूँ कि देखें, ज़िंदगी में आपको एक मौका मिलता है और ये बाज़ मौके बार-बार नहीं मिलते। इस वक़्त मैं जो कुछ कर सकता हूँ, हो सकता है 10 साल बाद मैं वो ना कर सकूँ। इस वक़्त मेरे पास एनर्जी भी है, वसाइल भी है। सो लेट्स मी डू इट। तारिक खान साहब, आपने जो 2014 में एक ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान को 2020 तक साफ सुथरा कर देंगे, तो इस मिशन को जो है अचीव करने में आप कामयाब हुए, आपके ख्याल से? मारिया मैं कहूँगा कि जितने 7 सालों में, क्योंकि बहुत बड़ा काम है, मिशन बहुत बड़ा है, लेकिन 7 सालों में जितना हमने अचीव किया, बहुत बहुत मैं इसमें मुतमईन हूँ। क्योंकि 7 साल पहले आपको याद होगा, आप चेक कर लें, तो कोई भी सफाई के बारे में और या पौधे लगाने के बारे में कोई बात नहीं हो रही थी चैनल्स पे, इवन सियासी पार्टियों पे या मतलब दूसरे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे तो हर डेली आप चेक कर ले तो कोई हज़ारों के मतलब एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, लेकिन पौधे लगा रहे हैं, सफाइयाँ हो रही हैं। तो मैं तो कहूँ कि बहुत फ़र्क आया हुआ है और इंशाअल्लाह मेरा जो था मिशन था 2020, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये दिसंबर 2020 मतलब आ गई।
तो मैंने जो अपने लिए मकसद तो एक टारगेट वो अचीव किया तो मैं तो बहुत मुतमईन हूँ इससे। सर अभी तक पाकिस्तान में आपके कितने जो है पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में आपके वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं? शुरू में तो बहुत ज़्यादा थे, मैं अगर कहूँ लाख तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत मतलब कि कोई बहुत हज़ारों से मतलब बहुत ज़्यादा थे। लेकिन यही जो गवर्नमेंट ने थोड़ा-सा वो किया कि वही नाम इस्तेमाल किया, तो उसमें सब मुझे इतना वो आ गए, काले आ गए लोग, मुझे वो करते थे कि देखें आप क्यों आप गवर्नमेंट आपका नाम मतलब इस्तेमाल कर रही है, और ये तो आपका ऑर्गनाइज़ेशन है, आपका मिशन है, आपका विज़न है। मैंने कहा देखें मुझे इससे कोई ग़रज़ नहीं है। हम तो उस हर एक बंदे को जो हमारे इस काज़ को मतलब फैला रहे हैं, और बेशक अपने प्लेटफ़ॉर्म से चला दें, हमें तो मतलब मेरा मकसद पाकिस्तान को साफ-सुथरा देखना है, चाहे वो कोई भी करे। और लेकिन वो थोड़े-से तय कि तो उसमें थोड़े-से मतलब हमारे जो वॉलंटियर थे, वो दूसरी पार्टियों की भी थे, वो थोड़े-से नाराज़गी का इज़हार होने क्या, नहीं है आप तो मतलब पीटीआई वाले हैं इस वजह से। मैंने कहा नहीं देखें, लेट्स मतलब हम इसमें पॉलिटिक्स नहीं करते, और मुल्क के लिए मतलब मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें। तो अभी थोड़े से कम हुए हैं, और वो गवर्नमेंट की वजह से, क्योंकि अभी लोग कन्फ्यूजन ये है कि गवर्नमेंट एक्टिविटी कर रही है या हम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ एक मैं बता दूं कि जो 2018 में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, तो मुझे बहुत से चैनल से मतलब वो काले आ गई कि मतलब लेट्स कम एंड सिट विद अस एंड वी वांट टू क्लियरिफाई दिस थिंग, मतलब कि आपका विजन है, आपका मिशन है। तो मैंने उस वक्त भी मतलब उनको कहा कि नहीं, मैं इस लड़ाई में या इस किस्म की चीज़ें मैं नहीं जाना चाहता, और मुझे इससे कोई शौक़ नहीं है। लेकिन उसका बाद में मुझे मतलब इतना था कि क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना कोई नंबर, कोई मतलब उनका कोई वेबसाइट नहीं था, हमारा वेबसाइट भी था, पेज भी है, उसमें मेरा नंबर था, तो मुझे डेली बिलीव मी रात को भी फ़ोन कॉलें आती थी और दिन को भी कि फलां जगह कचरा पड़ा है, आप आएँ साफ़ कर दें, फलां जगह वो है दरख्त जाई है। बिलीव मी सैकड़ों मतलब डेली वो कॉल, कभी-कभी मैं मोबाइल ऑफ कर लेता था। वो ये समझ रहे थे कि गवर्नमेंट का है, और ये बंदा अभी आएगा और हमारी मतलब गन साफ करेगा, और मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे। सर आखिरी जो है, जितने हमारे देखने वाले ऑडियंस और वो तमाम लोग जो कि कचरा फैलाते हैं, कचरा फेंकते हैं, डस्टबिन का इस्तेमाल नहीं करते और पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मरियम, मैं सारे जितने भी पाकिस्तानी इस वक्त देख रहे हैं, सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये जो काम मैंने शुरू किया था, और या अभी जो लोग कर रहे हैं, ये जो पाकिस्तान है, ये हमारा घर है, इसको अपना घर ही समझिए। और जब आप इसको अपना घर समझेंगे, तो इंशाल्लाह आप हर जगह कचरा नहीं फेंकेंगे। और अगर अभी तक आपने मतलब फेंका हुआ है, तो कोशिश कर रहे इसको दोबारा उठा ले, और अपनी आदतें चेंज कर ले, दूसरों को भी मना कर दें कि हर जगह गंदगी ना फैलाएं, और इसको अपना घर समझे, दरख्त लगाएं अपने लिए। अपने बर्थडे पे हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था 2016 में, ग्रीन बर्थडे। अब साल में अगर आप बर्थडे मनाते हैं, तो एक पौधा लगा दे अपने नाम पे, एक पौधा लगा दे अपने पेरेंट्स के लिए, पौधा लगा दे अपने जो अजीज़ अकारब है जो इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए सदका जारिया के तौर पर एक पौधा लगा दे, और उसकी लुक आफ्टर कर, उस पौधों को ओन कर दे, तो इंशाल्लाह वो कामयाब भी होंगी। इस मुल्क को अपना ही, जिस तरह आप अपने चार दीवारी के अंदर अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, इस तरह बाहर को भी साफ़ सुथरा रखें। ये जो पार्स है, ये हमारे लिए है। और मैं दूसरा एक बात कहना चाहता हूँ, जो सेहतमंद माहौल है, ये हमारी ज़रूरत है, ये कोई वो नहीं, हमारी ज़रूरत है। सेहतमंद माहौल में जब हम रहेंगे, तो बीमारियाँ कम होंगी। तो सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने गिर माहौल को साफ़ सुथरा रखें और सेहतमंद बनाएँ। शुक्रिया। इस मैसेज के साथ जो है बहुत शुक्रिया तारिक खान साहब, आपने हमें टाइम दिया, प्लस इतने खूबसूरत मैसेज कि जब भी आप अपनी बर्थडे मनाएं, एक पौधा ज़रूर लगाएं, उस पौधे को ओन करें, और पाकिस्तान को ओन करें, इस कंट्री को ओन करें, और मिल के बनाते हैं पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान।